आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हम एग्जाम्पल थ्रू पहले समझेंगे। ये होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x plus 1 equal to 0. As you can easily see that this equation is a quadratic equation. Here the highest degree present is 2, so it's a quadratic equation. Now if I put here x equal to 1, x का वैल्यू यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, हम देखते हैं क्या होता है इस इक्वेशन को। इस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे x है वहां पे हमने रिप्लेस किया x का वैल्यू 1। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो x equal to 1, at x equal to 1 this quadratic equation becomes 0। तो हम कह सकते हैं x equal to 1 is solution of x 2x square minus 3x plus 1। इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जाम्पल थ्रू हमने समझ लिया कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन जनरल अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो we can say that any real number alpha is a solution of quadratic equation ax square plus bx plus c if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. That means in other words we can say that if alpha satisfies this quadratic equation, we say this alpha is a solution of the quadratic equation. Now we discuss what roots graphically represents. If I consider a quadratic equation x square minus 3x minus 4 equal to 0, and we can easily find that the two zeros are minus 1 and 4. X equal to minus 1 comma 4 are roots of x square minus 3x minus 4 equal to 0. Now if I draw the graph, this is our x-axis, this is y-axis. This is our origin. Now if I plot the graph of this quadratic equation, 3 is positive values of x, negative value of x, positive value of y, negative value of y. Now we observe that the graph look like upward U. Here the points at which the graph cuts the x-axis, these are the two roots, these roots of the quadratic equation. One root and this is second root. So graphically, roots are the points at which the graph cuts the x-axis. Sometimes it's upwards and sometimes it's downwards. It depends upon the coefficient of the x square. Here the coefficient of x square is 1, which is positive, so the graph is upwards. If the coefficient of x square is negative, then graph is
in the downwards U. Graph look like downwards U. Similarly, the graph can be in second quadrant, in first quadrant completely, depends upon the coefficients of the x square and x. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे. फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. पार्ट फर्स्ट इज x square minus 3x minus 10 equal to 0. Now we solve this quadratic equation by factorization method, that is by middle term split. हम इस middle term को split करेंगे such that this minus 3 is back minus 3, that means sum आना चाहिए हमें minus 3 ही वापस, और प्रोडक्ट उन दो टर्म्स का आना चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म 1 इनटू -10 विच इज -10. तो -3 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है इनटू टू नंबर्स सच दैट द सम इज -3 और प्रोडक्ट आना चाहिए बैक हमें -10. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर -5x प्लस 2x minus 10 equal to 0. Minus 5x plus 2x is minus 3x. Minus 5 into minus 2 is minus 10. तो यहां से अब हमें x कॉमन निकाल सकते हैं इन दो टर्म्स में से. टेकिंग x कॉमन we get x minus 5. Taking 2 common from the last two terms plus 2 we get here x 2 into 5 minus 5. तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे हमें आ गया x minus 5 equal to 0. Now taking x minus 5 कॉमन, तो यहाँ पे x बचा plus 2 equal to 0. Now the product is 0 implies either the first factor is 0 implies x minus 5 is 0 or x plus 2 is equal to 0. Implies x equal to 5 और x equal to -2. इस 5 को जब मैंने ट्रांसपोज किया ये बन गया 5 प्लस 5 और जब इस प्लस 2 को करेंगे तो ये आ गया -2. So the two roots are, the roots of quadratic equation, roots are 5, -2. अब इसका दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब यहां पे जो मिडिल टर्म है दैट इज x, so कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1. दैट मींस हमें सम लाना है 1 ही वापस, यानी कि इसी 1 को हमें ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू 6, 2 इनटू -6 वो आना चाहिए माइनस, वो आ गया -12. तो इसी 1 को हमें ब्रेक करना है सो दैट द सम इज बैक 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए 12. इसके लिए हम ऐसे भी एक टेक्निक यूज करते हैं. 12 को हम फैक्टराइज करेंगे. 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर. तो अब हमारे पास नंबर्स हैं जो मल्टीपल करके 12 आते हैं. अब इन्हीं नंबर्स को हम अरेंज करके 1 लाएंगे सम. अगर मैं इन दो का मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 4 minus 3 is 1. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. कोफिशिएंट्स पे अगर हम नजर देखें 4 minus 3 दैट इज 1x, 4 into -3 is -12. सब कुछ आ गया. अब हम आगे इसको करेंगे. तो अब हम पहली दो टर्म्स को देखते हैं. यहां से हम 2 और x कॉमन निकाल सकते हैं. 2x कॉमन निकालो तो यहां पे बचा 2x प्लस 2. टेकिंग -3 कॉमन हियर तो -3 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2. -3 into 2 is -6 इक्वल टू 0. अब आगे हम इसको करते हैं. सॉरी यहां पे 2 ही आ जाएगा. तो यहां से हम x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे. क्या आ जाएगा? x प्लस 2
तो यहां पे 2x बचेगा minus 3 equal to 0. Now the product is 0 implies x plus 2 is 0 or 2x minus 3 equal to 0, or you can write this x equal to minus 2 और 2x equal to 3. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं x equal to 3, इसको 2 को ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा 3/2. तो दो जीरो जो हमें है वो आ गया हमें x minus 2 और x 3/2. Therefore roots are minus 2 comma 3/2. These are the two roots of the quadratic equation 2x square plus x minus 6 equal to 0. इसमें मेन क्या था, हमें फैक्टराइज हमें निकालना था. हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया. मिडिल टर्म यहाँ पे जो है वो x है, उसका कोएफिशिएंट 1 है. इसी 1 को हमने ब्रेक किया दो टर्म्स में such that the sum is 1 and the product is minus 12. उसके लिए हमने इसी 12 को फैक्टराइज किया. फैक्टराइजेशन से हमें आ गया 12 इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई. दैट मींस इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना था सो दैट वी गेट सम बैक 1. तो फिर किया 4x minus 3x, तो यहां से हमें आ गया सम 1 और प्रोडक्ट करके आ गया ये 12. यहां से फिर 2x कॉमन निकाला इन दो टर्म में से, तो आ गया x plus 2 minus 3 कॉमन x plus 2. x plus 2 common 2x minus 3, then x plus 2 is 0 or 2x minus 3. So we get x equal to minus 2 or 3/2. These are the two zeros, two roots of quadratic equation 2x square plus x minus 6 equal to 0. अब जो इसका थर्ड पार्ट है इसको आप ध्यान से देखिए. इट्स रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमें रूट्स भी आ गए. अभी तक हमने रूट्स में कोई नहीं किया था कोई पार्ट. फिर से हमें सेम वही टेक्निक यूज करनी है. हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. जो यहाँ पे मिडिल टर्म है वो है 7x. दैट मीन्स 7 को ही ब्रेक करना है हमें दो पार्ट्स में सच दैट सम आना चाहिए वापस, सम आना चाहिए 7 और प्रोडक्ट जो आना चाहिए उन दो टर्म्स का वो आना चाहिए रूट 2 इंटू 5 रूट 2. रूट 2 into 5 root 2, that is 5 into root 2 square. Square root get cancelled, that is 5 into 2, it's 10. तो हमें इस 7 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में सच दैट सम आना चाहिए उन दो पार्ट्स का 7 ही वापस और प्रोडक्ट आना चाहिए 10. तो हम इजीली इसको कर सकते हैं जैसे भी मैंने बताया था. इसी 10 को हम फैक्टराइज करेंगे. 2 5 r 5 1 r. इन्हीं दो नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई. 2 5 r 10 और 5 प्लस 2 आ गया 7. रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. 2x प्लस 5x 7x आ जाएगा. 2 इंटू 5 आ जाएगा 10. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हो गया. इसमें मेन पार्ट यही था. अब यहाँ पे बस अरेंज करना है इसको. आई कैन राइट दिस रूट 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज. इस 2x को हम चेंज करेंगे. इसको हम लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स. बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा. रूट 2 स्क्वायर जो है वो 2 ही वापस आ जाएगा. प्लस 5x 5 रूट 2 इक्वल टू 0. अब यहां से हम रूट 2 कॉमन निकालेंगे इन दो टर्म्स में से और x भी कॉमन निकलेगा. तो यहां पे आ जाएगा x प्लस रूट 2. इन दो में से प्लस हम कॉमन निकाल सकते हैं प्लस 5. तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. अब यहां पे और यहां पे सेम फैक्टर है तो ये कॉमन निकाल सकते हैं हम x प्लस रूट 2 और यहां पे आ गए ये प्लस रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई. अब प्रोडक्ट है 0 दैट मीन्स x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. x इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2
इसको ट्रांसपोज करेंगे और x इक्वल टू -5/√2। तो दो जीरो जो आ गए हैं वो है रूट्स आर -√2 कामा दूसरा है -5/√2। These are the two zeros of the quadratic equation 2x √2x square plus 7x plus 5/√2। इसमें आप ध्यान देंगे ये वाला स्टेप जो है इसको आप नोट कर लीजिए कि ये अरेंजमेंट हमने कैसे की। इस 2x को ब्रेक किया √2 इंटू √2x, ताकि हमारा जो यहाँ पे √2 है वो कॉमन आ जाए इजिली, क्योंकि √2 इंटू √2 स्क्वायर आता है और √2 ही वापस आ जाता है। इसलिए हमने ये टेक्निक इसको यूज की ताकि हमारा √2 आ जाए जो हमें कॉमन निकालना था। इसको आप गौर से देखेंगे ये कैसे किया। जो इसका फोर्थ पार्ट है अब वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम वैसी टेक्निक यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया ये, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से हम करेंगे इसको, इसका डिवाइड में है 1, इसको भी हम डिवाइड में रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 इज 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 हम ट्रांसपोज करेंगे 8 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 की वापस। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें पता है यहां से आगे क्या करना है, हमें इस -8 को ब्रेक करना है, -8 को ब्रेक करना है, सम हमें लाना है इसको -8 इस टर्म को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, सम आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए हमें 16 इंटू 1 दैट इज 16। और इस केस में ये इजी है, 16x स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4x -8x आता है, -4 इंटू -4 इज 16 प्लस 16। टेकिंग 4x कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -4x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, 4x माइनस 1, what remains there 4x minus 1 equal to 0। Either 4x minus 1, this one is 0, first 4x, or 4x minus 1 equal to 0, या तो ये वाला 4x minus 1 0 या ये वाला। implies 4x equal to 1, 4x equal to 1, x equal to 1 by 4, comma x equal to 1 by 4. So these are the two roots of the quadratic equation, x equal to 1 by 4, x equal to 1 by 4। और अगर आप ग्राफ में देखेंगे, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे ग्राफिकली कहां पे ये आ जाएगा, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये x एक्सिस को बस टच करेगा ये ग्राफ, जो अपवर्ड्स पैराबोला है, अपवर्ड्स u भी इसको बोलते हैं, ये x एक्सिस को एक जगह पे ये टच करेगा, इसीलिए इस केस में हम इसको बोलते हैं रिपीटेड जीरो। जब भी आ जाएंगे तो ग्राफ बस टच करता है x एक्सिस को। इसका फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सम आना चाहिए -20, इस -20 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में जिनका सम आना चाहिए -20 ही, और प्रोडक्ट आना चाहिए उन दो पार्ट्स का 100 इंटू 1, दिस इक्वल टू 100। इस केस में ये इजी है, हम इस 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, वो आ जाएगा 100 और 10 प्लस 10 आ जाएगा 20। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। -10 माइनस 10x माइनस 20 माइनस 10 इंटू माइनस 10 इज प्लस 100 इंटू करके आ जाएगा वो 100।
यहां से tan x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा यहां पे tan x माइनस 1। यहां से हम -1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो tan x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एम्प्लाइज tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये पार्ट 0 है या ये पार्ट 0 है। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1/10। यहां से भी मिल जाएगा हमें x इक्वल टू 1/10। तो जो दो रूट्स हैं, so roots are 1/10 and 1/10. These are the two roots of the given quadratic equation. If you like my lecture, then like, share and subscribe my YouTube channel Paramount Academy. Press bell icon to get notification of my new videos.